Okay, beta. Now I'm going to discuss about the keywords. Okay, beta. So you know keywords. What is keywords? Some drought animal, which is unknown to you. This word is unknown to you, beta. So drought animal, an animal used for pulling heavy loads. मतलब काफ़ी जो हमारे कुछ जानवर होते हैं जिनमें हेवी लोड्स हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा ड्राउट एनिमल. हमारा कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, ये सब हमारा ड्राउट एनिमल्स है. द एनिमल यूज फॉर पुलिंग हेवी लोड्स. सेकेंड है इंडेंजर्ड. यू नो बेटा, इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. क्लियर है? Instinct, when no member of a living exist any longer. जब उसमें स्पीसीज का एक भी मेंबर लिविंग नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट. हैबिटेट, ए प्लेस वेयर लिविंग बीइंग्स लिव्स मोस्ट कंफर्टेबली is known as its habitat. A place where certain kind of plants grow and animals live. तुम्हें पता है बेटा कि हर हैबिटेट में डिफरेंट माउंटेन एरिया में जाओ तो अलग है, सो वहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं, अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. डेजर्ट में जाओ तो वहाँ पर अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. तो इस तरह से ये सारे डिफरेंट होते हैं. अब है नेक्स्ट है बेटा ओयस्टर, है ना. A type of shellfish that has a tough shell with two parts. उसमें जो था ओस्टर जो है जिसमें पर्ल मिलता है हम लोगों को, तो हम पर्ल के लिए उन सीड्स को हम मतलब किल करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओस्टर. ए टाइप ऑफ shellfish that has a rough shell and with two parts. It is eaten both cooked and raw. Pollute means make dirty. Species, a group of very similar plants or animals को बोलते हैं species. Tusk, extra long tooth that grows outside the mouth of elephants. क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हमारा जो होता है ये. अब हम कुछ मीनिंग हम पूछना चाहते हैं. उत्सव राठौर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. आशुतोष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ. आशुतोष कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके बेटा. आदित्य नमन, अनम्यूट योरसेल्फ. आप लोग ऐसे उसको देखिए. Extra long tooth that grows outside the mouth of elephants. Veterinarian, doctor that looks after health and treat animals. क्लियर है बेटा? तो वो ऐसा होता है. अब यहाँ पर आता है बेटा नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज ए. We keep dogs and cat as pet. You know बेटा, we keep dash and dash as pet. बताओ जल्दी. Dogs and cats. Dogs and cats. Very good. Second है dogs assist police in search operation. हाँ, dogs assist police in search operation. Yes, dogs. Kasturi is an ingredient of dash deer. Musketeer. Yes. Musketeer. Yes. Musketeer. Dash of elephant have been used for making jewelry. Ivory. Tusk of Tusks elephant. or ivory. Tusks or ivory. Ivory, हाँ. Ivory of elephant या tusk of elephant have been used for making jewelry. Good बेटा. Extinction of frogs will increase the
dash population. Insect population. Very good. Insects. Insects It's population. insect population. Very good. Yes. Food chains are found in all habitats. Very good. Very good बेटा. ये है सो तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ. We keep dogs and cats as pet. Dogs, second है dogs assist police in search operation. Third है कस्तूरी is an ingredient of musk deer. Fourth है बेटा tucks of elephant have been used for making jewelry. Fifth है बेटा extinction of frogs will increase the insects population. Food chains are found in all habitats. Very good. So बेटा match the following. Second आता है बेटा match the following. First is crab. Option है बेटा pulling card, endangered animal, pearl, seafood and pashmina wool. Yes, seafood. Very good. Second है बेटा oyster. हमारे पास जो है ऑप्शन है pulling card, endangered animal, pearl, pashmina. Very good. Pearl. Third है ox. Third है बेटा ox. Pulling card. Yes. Ox है हाँ pulling card. Fourth है बेटा mountain goat. हाँ माउंटेन गोट क्या है बेटा हमारे पास है सो है endangered animal and pashmina wool. तो बाल्डीगल तो ऐसे ही endangered animals है ना. अब बेटा अब आ जाओ टिक द हाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन. A delicacy made from the earth fertilized egg of a variety of fish is the option A kasturi, caviar, C pashmina and D tusk. Yes beta unfertilized eggs of caviar. So right option is B caviar. Okay beta. Third है बेटा the body parts of rhinoceros for which is often hunted by human is option A bones, B horns, C legs and D skin. What are you saying beta? मैम आपने सेकंड वाला नहीं पढ़ा. Oh मैम आपने सेकंड वाला नहीं पढ़ा. just which of these animal is extinct? Which of these animals is extinct? First है bactrian camel, golden lion, quagga and panda. The right option is quagga. Third है बेटा the body parts of rhinoceros for which it is often hunted by humans is option A bones, B horns, C legs and D skin. So बेटा right option is horns. Very good. Fourth है बेटा humans are destroying habitat of animals by option है A planting tree, B reducing water pollution and C controlling wildlife trade and D cutting down trees. So beta right option is cutting down trees. D. Very good. Very good. अब आ जाओ फिफ्थ में बेटा D is the correct option. Which of the following food chain is correct? A leaves eaten by frog, eaten by a snake. B है बेटा grains eaten by hen, eaten by man. A corn eaten by rat, eaten by eagle. D plant eaten by jackal and eaten by lion. जल्दी बताओ right option. B. What will be the right option? Hen and man. B बेटा B.
Yes, eaten by B. hen, eaten by B. man. Grains is eaten by hen, is eaten by man. ओके बेटा, ओके। अब आते हैं बेटा आंसर द फॉलोइंग, डी एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, है ना बेटा। तो हम इसको भी थोड़ा सा आज है सो देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हम है सो फोर्थ का जो है उसको करते हैं बेटा, बहुत आसान है। नेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला है क्या होता है, नेम 5 वाइल्ड एनिमल्स। तो कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। एलिफेंट, टाइगर, Yes, ma'am. लायन, डियर I'm ready. एंड बेयर, है ना। तो नेम 5 वाइल्ड Yes, एनिमल्स। ma'am. फर्स्ट इज बेटा एलिफेंट, टाइगर, लायन, Lion, हाँ deer. हाँ, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म फूड चेन। गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म फूड चेन। अब आंसर होगा बेटा, द प्रोसेस ऑफ हु इट्स whom is called the food chain. It shows Food chain. how Food each chain is the living process beings of who eats food. get its food, है ना। यहाँ पर कौन सा, द प्रोसेस ऑफ हु इट्स whom is called the food chain. It shows how each living beings gets its food. क्लियर है बेटा? ओके ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिस्ट्रॉइंग द एनिमल सराउंडिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कैसे, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है वो डिस्ट्रॉय Natural कर रहा surroundings. है अपने वाइल्ड लाइफ के नेचुरल सराउंडिंग्स को। Human beings destroying the natural surroundings of wild animals by cutting trees. वेरी गुड, आंसर होगा बेटा, ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड बाय पॉल्यूटिंग रिवर्स, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द एनिमल्स दैट कैन बिकम मैन ईटर्स। कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखिए। Leopard and lion. That can become leopard and lion. यस, Tiger टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। leopard. हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, which act has been passed by the Indian government to protect wildlife। तुम्हें बता बेटा क्या नाम है उसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट has been passed by Indian government to protect People for the ethical wildlife। treatment of animals. हाँ, which act has been passed by the Indian government to protect wildlife, है ना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, है ना बेटा। अब क्या तो हम लोग थोड़ा सा ई को भी डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो Yes, आराम से ma'am. हो जाएगा, है ना बेटा। Yes, ma'am. तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा है बेटा, क्योंकि ना स्टेट एनी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। तुमने देखा है बेटा कि बहुत सारे मतलब उसमें Silk and wool that are used for making cloths come from silkworm and sheep respectively. Leather obtained from the skin of animals like goat, sheep, and buffalo is used to make shoes, purses, and हाँ, bags. इसमें से Pearls कोई भी used as वेट jewelry. वेट उत्सव राठौर, बेटा कोई भी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, उसमें ढेर सारे पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, आपको कोई भी उसमें से 5 लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी, फॉलोइंग आर 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। फर्स्ट है बेटा, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म एंड वूल्स कम फ्रॉम sheep,
are used for making clothes. B है बेटा, leathers comes from the skin of animals that is used for making shoes, bags, etc. C है, थर्ड है बेटा, pearls come from oyster that is used as jewelry. फोर्थ है बेटा, fish, prawn and crabs are used as food. Fish, prawn and crabs are used as food. E. Many animals are used as means of transport like horses and camel. ये लोग जो होते हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किए जाते हैं बेटा. तो हम पांच तरह का हम उसके यूजफुलनेस को हम लिखेंगे. ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से इसको बोल रही हूँ. Following are 5 ways in which animals are useful to us. Okay बेटा, first है silk comes from silkworm and wool comes from sheep are used for making clothes. First है हमारा useful. B है leather comes from the skin of animals that is used for making bags, shoes, belt, ढेर सारे. C. Pearls comes from oyster that is used as jewelry. Fish, prawn and crabs are used as food. है ना बेटा? Many animals are used as means of transport, horse, camel, etc. क्लियर है बेटा? सेकंड है differentiate between extinct and endangered animal. Give 2 examples of each type. सबसे पहले बेटा दो भागों में उसको डिसाइड करके एक्सटिंक्शन एनिमल्स को लिखना है पहले, फिर एंडेंजर्ड एनिमल को लिखना है और उसके एग्जांपल्स लिख देना है. बस तो बेटा एक्सटिंक्ट एनिमल्स में ए लिखेंगे, दे नो लॉन्गर लिव ऑन द अर्थ. और यहाँ पर होगा बेटा बी. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ आर क्वागा एंड गोल्डन टोड. एंडेंजर्ड में लिखो, बीच से उसको डिवाइड करोगे बेटा. एंडेंजर्ड एनिमल्स, दे आर लिविंग एट प्रेजेंट बट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. बी है बेटा, 2 एग्जाम्पल्स आर टैमरिन एंड पांडा. क्लियर है बेटा? पहले तो लिखोगे व्हाट इज एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड व्हाट इज एंडेंजर्ड एनिमल्स. क्लियर है? उसके बाद दो एग्जांपल्स दे देना है. बस आपका ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स हो जाएगा. बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Yes, ma'am. क्वेश्चन No, ma'am. हाँ, वेरी गुड बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 में आओ बेटा. What is wildlife trade? Why is it harmful? ये harmful क्यों है ना? तो आंसर होगा बेटा, many wild animals are killed and their body parts are sold. उसके body parts क्या करते हैं बेटा? बेचे जाते हैं. This is called wildlife trade. ये कहलाता है wildlife trade. It has resulted in extinction of many animals. It has resulted in extinction of many animals. कुछ बच्चे बिना मतलब की आवाज कर रहे हैं. पहले आप लोग का स्टोरी सुन लीजिए क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में आपसे थोड़ी बातें करूंगी. ठीक है ना? तो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड? व्हाई इज इट हार्मफुल? Many wild animals are killed and their body parts are sold. It has resulted in extinction of many animals. Hence, wildlife trade is harmful. So बेटा ये है सो वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो हार्मफुल है. इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा? हमारे सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना? तो क्या हम सरवाइव करेंगे? नो, हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रूएल्टी टू एनिमल्स. सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू प्रिवेंट
उसी में से कोई भी सजेस्टिंग करना है बेटा कि हमें एनिमल्स के प्रति क्रूएल नहीं होना चाहिए, है ना। तो 4 स्टेप्स है, मांग रहा है सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रूएल्टी टू एनिमल्स। आंसर होगा बेटा 4 स्टेप्स टू प्रिवेंट क्रूएल्टी टू एनिमल्स आर एज फॉलोज। A. We should not throw polythene bags in the garbage. We should not throw polythene bags in the garbage. B है बेटा, we should not keep the birds in cages or the fish in the aquarium. मतलब हम उसे ट्रैप नहीं करना चाहिए। सी है बेटा, we should not remove eggs of birds from their nest. उनके नेस्ट से हमें हंसो रिमूव नहीं करना चाहिए एग्स को। डी है बेटा, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। हमें अपने जो अगर हमने पेट्स रखे हैं तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्लियर है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड because their body is considered useful by man. Give 4 examples of such wild animals. Also mention the parts of body which is used in each case. हम क्या करते हैं बेटा कि some wild animals are hunted because उनके बॉडी पार्ट्स हम बेचते हैं। तो ऐसे तुमको 4 एनिमल्स के नाम बोलने हैं और उसके बॉडी के किस पार्ट्स को हम हंसो बेचते हैं। ठीक है ना बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ एनिमल्स बॉडी पार्ट्स आर। ए लिखो बेटा एलिफेंट, फर्स्ट जो है उसका है ए एलिफेंट। उसका कौन सा वर्ड, तो डैश दे के लिखो। दे आर हंटेड फॉर देयर टस्क। They are hunted for their tusk. B लिखो बेटा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बेयर्स। उसके डैश देख लो, दे आर हंटेड फॉर देयर गॉल ब्लैडर। दे आर हंटेड फॉर देयर गॉल ब्लैडर। थर्ड बेटा दे लिखो राइनोसिरस। डैश देख लिखो दे आर बीइंग स्लॉटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स। HORNS हॉर्न्स, है ना। तो ये जो किए जाते हैं, स्लॉटर्स किए जाते हैं, वो हॉर्न्स के लिए किए जाते हैं। फोर्थ में लिखो बेटा टाइगर। टाइगर को बहुत लोग ऐसे मार रहे हैं। दे आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ देयर बोन्स। दे आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ देयर बोन्स। कहा था ना कि बोन से वो लोग ऐसे मेडिसिन बनाते हैं और उसके स्किन को भी वो डेकोरेटिव पीस बनाते हैं। सो बेटा आपको एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ, आप ऐसो इसको फिर से बहुत अच्छे से लिखेंगे। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ एनिमल्स बॉडी पार्ट्स आर एज फॉलोज। ए एलिफेंट, दे आर यूज फॉर देयर टस्क। B. North and South American bears, they are hunted for their gallbladders. C. Rhinoceros, they are being slaughtered for their horns. D. Tiger, they are killed for making use of their bones. बोन के यूज के कारण ये ऐसे किए जाते हैं। आई होप बेटा आपको हंसो ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग जब देखेंगे वीडियो तो उसको हंसो करेंगे, है ना बेटा। तो आप लोग इसको हंसो तैयार करेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ बेटा, है ना। ई के क्वेश्चन आंसर को फिर से रिपीट कर रही हूँ। एकदम ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है स्टेट एनी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। आंसर होगा बेटा
Following are 5 ways in which animals are useful to us. First है बेटा, silk comes from silkworm and wools come from sheep, are used for making clothes. We have leather comes from the skin of animals that is used for making shoes, bags, etc. सी पी पी हाँ क्या है बेटा, pearls come from oyster that is used as jewelry. Clear है? The fish, prawn and crabs are used as food. E, many animals are used as means of transport. एग्जाम्पल में होगा बेटा हॉर्स, कैमल. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन extinct and endangered animals. Give 2 examples of each type. Extinction animals are no longer live on the earth, whereas endangered animals are living at present but are in danger of becoming extinct. Examples of extinct animals, quagga and golden toad. Examples of endangered animals, tamarin and panda. Question number 3 है बेटा, what is wildlife trade? Why is it harmful? Many wild animals are killed and their body parts are sold. This is called wildlife trade. It has resulted in extinction of many animals, hence wildlife trade is harmful. Question number 4 है बेटा, suggest any 4 steps to prevent cruelty to animals. Answer, 4 steps to prevent cruelty to animals are as follows. A, we should not throw polythene bags in the garbage. Second, we should not keep the birds in cages or fish in the aquarium. C, we should not remove eggs of birds from their nest. We should not take care of our pets. Clear है बेटा? 5 है, आंसर 5 है. आंसर 5 है. Some wild animals are hunted because their body parts is considered useful by man. Give the 4 examples of such wild animals. Also mention the parts of the body which is used in each case. 4 examples of use of animals body parts are as follows. Okay beta. First, elephant, they are hunted for their tusk. B, North and South American bears, they are hunted for their gallbladders. C, rhinoceros, they are being slaughtered for their horns. D, tiger, they are killed for making use of their bones. क्लियर है बेटा? आपको पता है कि ये क्वेश्चन आंसर आपको हंसो ये लिखना है. क्लियर है बेटा? तो ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग वीडियो को देखेंगे और धीरे धीरे वीडियो को देख करके आप लोग हंसो इस आंसर को, क्वेश्चन आंसर को लिखते चले जाएंगे. ओके बेटा? ओके. तो क्या आप लोग हंसो थोड़ा सा, मैं हंसो अनम्यूट करती हूँ और आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ. यस मैम, समझ गए हम लोग. हाँ समझ गए? यस मैम. क्लियर है? मैम क्या आप इस मैम आप वीडियो बता के भेज दीजिए ना, वीडियो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है.
हाँ यस तो मैम, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग मैम, मेरे में तो सिर्फ एक बार स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। मामा वीडियो। ओके ओके बच्चा। मैम, प्लीज सेंड द वीडियो फास्ट। प्लीज लिख के भेजिए ना। ओके ओके, आई विल ट्राई बेटा, आई विल ट्राई टू सेंड यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो पूरे टाइम है, सो आप लोग वीडियो देखोगे। हाँ, वीडियो से लिखोगे, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।